નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું જે 9મા ધોરણની અંદર ચોથું કાવ્ય કર્ણકા જીવન દર્શન એ કાવ્ય આપણે બે વિડિયો લેક્ચરની અંદર એને બે પાર્ટની અંદર બે વિભાગની અંદર આપણે સમજવા માટેનો એ પ્રયાસ કર્યો। સાથે સાથે એ વિડિયો લેક્ચરના અંતે મેં તમને એ ચોથા કાવ્યને અનુલક્ષીને જે સ્ટડી મટીરિયલ્સ પણ આપ્યું હતું, તો એ સ્ટડી મટીરિયલની અંદર મેં તમને એક સૂચના પણ આપેલી છે કે ભાઈ આ સ્ટડી મટીરિયલ જે છે તેની અંદર આપણા પાઠ્ય પુસ્તકની અંદર સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમામ કે જેની અંદર વ્યાકરણ હોય, અર્થાત સમાનાર્થી શબ્દો, વિરોધી શબ્દ, એ સિવાયના બીજા કોઈ અન્ય શબ્દો હોય, તો માત્ર એટલી વસ્તુ જે સ્વાધ્યાયની અંદર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવેલી છે એ તમામ વસ્તુ તમારે પાઠ્યબુકની અંદર સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત રીતે લખવાની હતી, જે મિત્રો તમે લખી લીધી હશે। તો આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર આગળ વધતા એક નવા ચેપ્ટરની આજે આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો મિત્રો આપણું એ 5મું ચેપ્ટર છે જેનું શીર્ષક આપણને એવું આપ્યું છે કે સ્વરાજ્યની નીવ, જે સાહિત્ય પ્રકારની દ્રષ્ટિએ એક એકાંકી છે કે મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે આપણે અગાઉના 8મા અને 7મા ધોરણની અંદર એકાંકી એ ભણી ગયા છે, જેથી કરીને એકાંકી શું છે એના વિશેનો ખ્યાલ આપણને છે, છતાં પણ આપણે એનો થોડો ખ્યાલ મેળવવાનો પ્રયાસ કરીએ તો એને થોડું તાજું કરવાનો પ્રયાસ કરીએ તો મિત્રો એકાંકી છે આમ જોવા જઈએ તો એક નાટકનું જ સ્વરૂપ છે, પણ મિત્રો એની અંદર તફાવત એટલો છે કે નાટક છે એ રંગમંચ ઉપર રજૂ થતું હોય છે, એની અંદર પાત્રોની સંખ્યા વિશેષ પ્રમાણની અંદર હોય છે, જ્યારે એકાંકી છે એ મિત્રો એક સીમિત પાત્રો એમાં હોય છે। એકાંકી કોઈ રંગમંચ ઉપર રજૂ થતું નથી, પણ એકાંકી છે એ દ્રશ્ય સ્વરૂપે હોય છે, જેના માટે કોઈ ચોક્કસ એક સ્થાન, એક જગ્યા એ નિશ્ચિત હોય છે, અને એ જગ્યા ઉપરથી, એ સ્થાન ઉપરથી જુદા જુદા દ્રશ્ય સ્વરૂપે એ એકાંકીના જે સંવાદો છે, જેમ નાટકના સંવાદો છે એવી જ રીતે એકાંકીના સંવાદો છે એ રજૂ થતા હોય છે। તો આ મિત્રો તે એકાંકી અગાઉ પણ આપણે સમજી ગયા છે, આજે ફરી વખત પાછા આપણે એને એ એકાંકી શું છે એના વિશેની આપણે પ્રાથમિક માહિતી મેળવી અને આગળ વધીએ તો આપણું આજે સ્વરાજ્યની નીવ એ સાહિત્ય પ્રકારની દ્રષ્ટિએ એકાંકી છે। મિત્રો આપણને કદાચ એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે स्वराज्य की नींव पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है, तो हम बता सकते हैं स्वराज्य की नींव एकांकीना का जो साहित्य प्रकार है वह एकांकी, तो जिसका सर्जक यानी कि लेखक जो विष्णु प्रभाकर है कि जिन्होंने एकांकी की रचना की। पर दोस्तों हम एकांकी का शीर्षक जो है जिनसे हम विषय में प्रवेश करने की शुरुआत करें तो स्वराज्य की नींव ऐसा शीर्षक हमें दिया गया। तो दोस्तों पहले तो स्वराज्य यानी कि स्व यानी कि हमारा अपना राज्य यानी कि स्वतंत्रता,
और नींव का अर्थात आधार, मतलब स्वराज्य की नींव का मतलब हुआ स्वतंत्रता का आधार, જેને આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ છીએ કે સ્વરાજ્યનો પાયો, આપણા પોતાના રાજ્યનો પાયો, અર્થાત કે કોઈ પણ વસ્તુનો જે પાયો છે એનો આધાર છે એ જો મજબૂત હશે તો જ એ વસ્તુ છે એ શ્રેષ્ઠ રીતે એ ટકી શકશે। तो मित्रों અહીંયા આપણને એ શીર્ષક આપવામાં આવ્યું છે કે स्वराज्य का आधार। तो दोस्तों हम सबने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, जो हमारे इतिहास का यानी कि हमारे इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम सुनते ही हम श्रद्धा से, आदर से हम नतमस्तक हो जाते हैं। तो प्रस्तुत जो एकांकी है स्वराज्य की नींव, इसमें लक्ष्मीबाई और उनके साथ कई उन समय में जो वीरांगना थी, जो महिलाएं थी, उनके चरित्र की बात भी आप हमको ये जो प्रस्तुत एकांकी है उसमें उनकी झलक देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमारे देश में अंग्रेजों ने कई सालों तक 150-200 सालों तक हमारे राज्य में उन्होंने शासन किया। उन शासन की जो सबसे पहली हमारे देश में जो स्वतंत्रता स्वराज्य के लिए जो लड़त की शुरुआत हुई वह उसी समय से हुई। हमने ये भी जाना है कि जब सन 1857 जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो विप्लव हुआ, उनके खिलाफ जो युद्ध हुआ, उसी ऐतिहासिक आधार पर ये स्वराज्य की नींव जो प्रस्तुत एकांकी है हमारे यहाँ पर रखने का प्रयास किया कि इन 1857 के विप्लव में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उसी समय के अपने कई योद्धाओं जो प्रसिद्ध थे, उनके महान सेनापति जो तात्या थे, रघुनाथ राव थे, बांदा के नवाब थे, इन सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़त लड़ी थी और इसी लड़त में वह अंग्रेजों को हरा तो नहीं सके, स्वराज्य तो प्राप्त नहीं कर सके। और क्यों प्राप्त नहीं कर सके, इसमें कौन सी हमारे तत्कालीन देश की, हमारे राजाओं महाराजाओं की जो क्षति हो, यानी कि जो थोड़े घणे यानी कि थोड़े बहुत अंश पर जो हमारे महान राजाओं की जो क्षति थी, जो आपस में लड़ने झगड़ने की जो विचारधारा थी, उन्हीं के कारण हमें स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उसी क्रांतिकारियों ने, इसी महान योद्धाओं ने हमारे देश की जो ये आज हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसी स्वतंत्रता का एक आधार यानी कि वही स्वतंत्रता की जो स्वराज्य था उसकी नींव उसी विप्लव के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि वह लोग हमें स्वतंत्रता तो नहीं दिला सके, परंतु उन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए लोगों में इसी प्रकार एक जागरूक यानी कि एक चेतना का जो संचार किया, यानी कि स्वराज्य की सबसे पहली नींव 1857 के विप्लव में हिंदुस्तान में डाली गई। तो इसी कथा के आधार पर एक ऐतिहासिक एकांकी हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ पर प्रस्तुत करने का
प्रयास किया है। साथ साथ ये भी यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि हमारी ये स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें उसी समय कुछ महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही थी। और इसी जो वीरांगना थी, जो झांसी की रानी के साथ साथ और कई, जो हमारी एकांकी में जोही नामक एक महिला है, जो मुंदर नाम की एक महिला है, कि जिन्होंने भी स्वतंत्रता की लड़त में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अपना साथ देकर उन्हें स्वराज्य की नींव में उन्हें सहायता करने की जो उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पर ये जो महिलाओं की यानी कि महिलाओं का योगदान भी बहुत कुछ रहा है, इसे भी यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और साथ साथ अंत में भारतवासी जो है उनमें स्वराज्य की जो चेतना जगाने का प्रयास इन महिलाओं ने किया है, उन महान योद्धाओं ने किया है, उन महान क्रांतिकारियों ने किया है, उसे हम आज भी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारी स्वतंत्रता है जिसमें उन्होंने अपना रक्त बहाया है, उन्होंने अपनी जानें गंवाई है, तो उसे हम कभी भूल नहीं पाते। तो दोस्तों इस प्रकार कि ये जो 1857 के विप्लव से जुड़ी हुई झांसी की रानी से लेकर कुछ अन्य महिलाएं थी, अन्य कुछ योद्धाएं थे, ये जो ऐतिहासिक जो घटना है उनके आधार पर एकांकी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों एक कहानी को हम विस्तार से पढ़े इनसे पहले उसका जो सर्जक है, जो लेखक है विष्णु प्रभाकर जी, इसका हम पहला परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ये जो एकांकी है इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु प्रभाकर जी है वह उसका जो परिचय हम प्राप्त करें, साहित्य प्रकार की दृष्टि से हमने एकांकी इसका ये नाम दिया जो स्वराज्य की नींव, जिसका शीर्षक है, यानी कि ये पाठ का नाम है। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था, यानी कि लेखक का जन्म मुजफ्फरनगर के जो मीरनपुर नाम का गांव था वहां पर हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त किया था कि हमने પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ છે પોતાના ગામની અંદર, બાકીનું ઉચ્ચતર શિક્ષણ છે हमने ये हिसार नामના શહેરની અંદર हमने प्राप्त કર્યું। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में, मतलब कि विष्णु प्रभाकर से घણા વર્ષો સુધી દિલ્હીમાં રહીને એમણે પૂર્ણ સમય માટે સાહિત્યની સેવા કરી અને ત્યારબાદ તેઓ દિલ્હી આવીને એ સરકારની સેવા કરીને એ દિલ્હી આવીને પોતે સાહિત્યની અંદર એ પોતે સેવાની અંદર સાહિત્ય રચનાની સર્જનની અંદર પોતે કાર્યરત રહ્યા। अपनी कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखा चित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा। એટલે કે લેખકે ઘણી બધી સાહિત્ય એટલે કે તમામ પ્રકારની ઉપન્યાસ હોય, નાટક હોય, લેખન હોય, એ સિવાય कई सारे जीवनी, नाटक, संस्मरण, रेखा चित्र आदि साहित्य में उन्होंने सर्जन किया। आपकी प्रमुख रचनाएं अर्थात लेखक की जो मुख्य रचनाओं से ढलती रात, स्वप्नमयी जो इसका उपन्यास है,
संघर्ष के बाद उसका कहानी संग्रह है। नव प्रभात डॉक्टर जो लेखक का नाटक है। प्रकाश और परछाइयां 12 एकांकी अशोक जो उनके एकांकी के संग्रह है। जाने अनजाने संस्मरण और रेखा चित्र आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी आदि। अर्थात एमणे साहित्यની અંદર ઘણા બધા પુસ્તકો ઘણા બધા સાહિત્યના ગ્રંથો છે એની રચના કરી છે। હવે મિત્રો આપણે અહીંયા જે પ્રસ્તુત એકાંકી છે એની અંદર તમારા પાઠ્યપુસ્તકની મેં તમને એના મુખ્ય મુખ્ય પાત્રોની વાત છે એ અગાઉ વિષય પ્રવેશની અંદર કરી। ખાસ કરીને અહીંયા મુખ્ય પાત્ર તરીકે આપણે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ તરીકે લઈ શકીએ। ત્યાર પછી બીજા અન્ય બે મહિલા પાત્ર છે जो एक मुंदर है दूसरे जूही है। जो दोनों महिलाएं लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं। उसके बाद तात्या जो झांसी के यानी कि लक्ष्मीबाई के राज्य के एक सेनापति है तात्या। रघुनाथ राव और सेना नायक और बांदा के नवाब आदि सभी पात्र जो मुख्य योद्धा के रूप में, चाहे वह रघुनाथ सिंह हो, सेना नायक हो या तो बांदा के नवाब हो, ये सभी इसी वक्त के ये महान योद्धा थे जो झांसी के राज्य में शामिल थे। तो ये प्रमुख ये जो 6 पात्र है, ये 6 पात्र के आधार पर ये एकांकी है। उसका विषय वस्तु उसे व्यवस्थित यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से उन्हें विकसाने का या तो आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया कि जो ये एकांकी होती है वह कई स्थान पर या तो कोई एक दृश्य के साथ उसे प्रस्तुत की जाती है, એટલે કે એને દ્રશ્ય સાથે રજૂ કરવામાં આવે। તો આ એકાંકીની શરૂઆત મિત્રો प्रारंभ તમે જુઓ कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है, यानी कि जो एक स्थान है, जो मंच है, यहाँ पर युद्ध भूमि જેવી રીતે યુદ્ધનું મેદાન હોય, રણ મેદાન હોય એવું એક પૃષ્ઠભૂમિ, એક દ્રશ્ય એક તૈયાર અંકિત થયેલું अनुभवाय से देखाय से। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है, यानी कि युद्ध में जाने के लिए जो तैयारी के लिए उसका जो कैंप होता है वह उसके पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो टेंट है, जो तंबू है, उसका एक भाग यहां से दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है, यानी कि पर्दा उठने पर दृश्य की जब शुरुआत होती है तब महारानी लक्ष्मीबाई उत्साह के साथ आवेश में आकर, उत्साह यानी कि यहाँ पर उत्तेजित आवेश में आकर वह अपनी जो सखी जूही है उनके पास मंच पर प्रवेश करती है या तो प्रस्थान करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में, यानी कि जूही और लक्ष्मीबाई दोनों की जो पोशाक है लाल कुर्ती में, यानी कि एक सैनिक की वेशभूषा में दोनों सज है। इसी प्रकार जो ये पहला दृश्य यानी कि ये दृश्य के साथ इस एकांकी की शुरुआत यानी कि आरंभ होता है। लक्ष्मीबाई कहता है, यानी कि लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। आरंभ में लक्ष्मीबाई ऐसा कहती है कि मेरे देखते देखते ऐसा क्या हो गया जूही। अपनी सखी से कहते हैं झांसी, कालपी, ग्वालियर कहां गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है।
यानी कि उनके जो प्रसिद्ध किले थे, झांसी का किला था, कालपी का किला था, ग्वालियर का किला था, यानी कि ये लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरे देखते देखते क्या हो गया कि जो झांसी, ये कालपी, ये ग्वालियर, यानी कि मैं अपनी मंजिल तक, लक्ष्य तक, यानी कि ध्येय तक के पास पहुंचकर वह बार बार हमसे दूर चली जाती है। मंजिल यानी कि लक्ष्य। दोस्तों ये जो शब्दार्थ है लिखते जाएंगे, जो मंजिल यानी कि लक्ष्य है। तो ये लक्ष्मीबाई कहશે કે ભાઈ આ શું થઈ ગયું કે મંજિલ સુધી, ધ્યેય સુધી એ પહોંચતા પહોંચતા એ ધ્યેય સુધી પહોંચવામાં, સફળ થવામાં એ નજીક પહોંચી રહ્યા છે ત્યાં જ દૂર ઠેલાઈ જાય છે। અર્થાત પોતાની જીત છે એ પાકી જ હોય છે, પરંતુ નજીક આવતા જ દૂર ઠેલાતી જતી હોય એવું અનુભવાય છે, એવું લાગે છે। तो स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरी क्षण मार्ग में हिमालय बढ़ जाता है। यानी कि आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य ने हूँ नजीक आवतुं जोઉં છું, પરંતુ બીજી જ ક્ષણે શું થાય છે? मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। दोस्तों ये मुहावरा है, क्या है? हिमालय अड़ जाता है, यानी कि हिमालय जैसी महान दृढ़ मुसीबत आ जाती है। अड़ जाना तो दोस्तों रुकावट बनना, हिमालय जैसी रुकावट बनती है। जो यहाँ पर मुहावरा लिखते हैं, मुहावरा है यहाँ पर अड़ जाना मतलब रुकावट। तो स्वराज्य से नजीक आवतुं એ દેખાય છે, પણ એ જ ક્ષણે, બીજી ક્ષણે હિમાલય જેવી કોઈ સમસ્યા, એ મુસીબતનો પહાડ એ રસ્તામાં ઊભો થાય છે અને એ દૂર ઠેલાઈ જાય છે। અડ જાતા है, रुकावट बनता है। फिर उसे पास करती हो तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। અને જો એ સમસ્યામાંથી બહાર નીકળું तो फरी पासी बीजी समस्या, यानी कि महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। यानी कि थपेड़े यानी कि लहरें के किनारों से टकराना। यहाँ पर कहेंगे लहरें की थपेड़े। लहर की थपेड़े यानी कि महासागर का जो लहरों का किनारे से टकराना। अर्थात लक्ष्मीबाई કહે છે કે એક સમસ્યામાંથી બહાર નીકળે છે તો બીજી સમસ્યા એ આવીને ઊભી જ રહે છે। એટલે કે डरावनी लहरें, डरावनी महासागर की लहरों से सामेथी थप्पड़ मारते हुए सामनो करते हुए वो लागे छे। उनसे जूझती हो तो नाविक सो जाते हैं, यानी कि जूझना अर्थात उनसे लड़ना। ये भी एक शब्द है, जूझना। उनसे जूझती हो तो ये जूझना यानी कि लड़ना। जो महासागर की थपेड़े से लड़ती हूँ तो जो नाविक है सो जाते हैं। तो दोस्तों नाविक यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई की सेना के जो महान योद्धा थे, तात्या और उसके साथ साथ रघुनाथ राव, सेना नायक आदि सभी उनकी सेना के जो नाविक थे वह सो जाते, यानी कि वह अभी भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनके साथ एकजुट होकर वो सामना करने के लिए अब तैयार नहीं है। इसलिए ये जो स्वराज्य है ये दूर ही दूर ठेला जाता है, या तो पीछे पीछे ठेला जाता है। देखो जुबी उधर क्षितिज पर देखो, देखो
जूही देखो उधर क्षितिज पर देखो, क्षितिज यानी कि जहां पर आकाश और जमीन का छोर एक जैसा दिखाई देता हो, जिसे हम क्षितिज कहेंगे, जो शब्द समूह के लिए पूछा जा सकता है कि जहां आकाश और जमीन हमें मिलती हुई नजर दिखाई देती है, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो जूही को कहते हैं देखो जूही इधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, कि तू क्षितिज ऊपर जो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही, लपटे यानी कि ज्वाला, जो જેને આપણે ઝાંઝવાના નીર કહીએ છીએ, તેજ ધૂપની અંદર પ્રકાશની અંદર જે ઝાંઝવા બોલતા હોય એ લપટે यानी कि જ્વાલા। जो ज्वाला, मारा सारा आकाश धूम घटाओ से छाया हुआ है, कि आखो आकाश है धूम घटाओ थी ये छवाયેલું છે। और प्रलय की भूमिका है यानी कि सर्वनाश, विनाश, प्रलय की अब भूमिका बन गई है, यानी कि ऐसा लगता है कि अब सर्वनाश होने वाला है, प्रलय होने वाला है, ऐसा कुछ महसूस होता है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी जो राव साहब है, एक महान योद्धा है, वो ऐशो आराम में मशगूल है, जिन्हें इस स्वराज्य की पूछ पड़ी ही नहीं है, यानी कि ऐश आराम में वह मशगूल है। आवेश में आते ही कहती है, और आवेश में आकर कहती है, फिर सहसा मौन हो जाती है, અને અચાનક વળી પાછું એ બોલીને લક્ષ્મીબાઈ છે શાંત થઈ જાય છે અને મૌન થઈ જાય છે। और जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, અને કદાચ ત્યારે જૂહી છે કંઈક બોલવા માટે પોતાનું મુખ ખોલવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યાં લક્ષ્મીબાઈ ફરી પાછા કંઈક બોલી ઉઠે છે, અને શું કહે છે? जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही दुखी सोच कि जोशी यानी कि जूही मैंने प्रतिज्ञा ली थी, मैंने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा यानी कि प्राण, कि मैं झांसी कभी भी वापस यानी कि किसी को नहीं दूंगी, यानी कि फिर भी कि मेरी झांसी मेरे हाथ से निकल गई। सहसा तीव्र होकर એટલે કે અચાનક તેજીથી तीव्र झड़पती नहीं नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली। वળી પાછી અચાનક બોલી કે નહીં નહીં झांसी એ હજી હાથથી નીકળી નથી, અર્થાત झांसीનું રાજ્ય હજી મારા હાથમાંથી ગયું નથી। मैं अपनी झांसी नहीं लूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या मैं अकेली ही झांसी लेकर आई। फिर वह साहसपूर्ण कहती है नहीं मैं झांसी कभी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, तो क्या हुआ फिर भी मैं अकेली इस झांसी को वापस लेकर रहूंगी। ऐसा वह साहसपूर्ण यानी कि हिम्मत पूर्वक वह प्रण करते हैं, यानी कि वह प्रतिज्ञाबद्ध रहती है। और तब जूही कहती है दोस्तों, क्या कहती है? कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है। जूही कैसे कोण એવું કહે છે કે મહારાણી તમે એકલા છો, તમે તો ગીતા વાંચો છો, जो हमारा प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, जो एक जीवन जीने की, जीवन में न निराश होने की, उदास न होने की हमें प्रेरणा देता है, तो तुम तो गीता पढ़ती हो। फिर यह निराशा कैसी? પછી તો પછી આ નિરાશા કેમ? તમે તો ગીતા વાંચો છો। ગીતા વાંચનાર વ્યક્તિ જીવનમાં ક્યારેય હતાશ કે નિરાશ થાય નહીં, તો તમે નિરાશ કેમ થયા? तो लक्ष्मीबाई कहता है कि मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा? क्या कहती है लक्ष्मीबाई कि मैं निराश नहीं हूं, कि શું તું એ જાણે છે? क्या तू ये जानती है कि उस दिन मुझे
बाबा गंगादास ने, हमारे गुरु जो बाबा गंगादास है, उसने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, बाबा गंगादास ने कहा था जब तक, यानी कि ज्यां सुधी अपना समाजनी अंदर छुआछूत, आभड़सेठ, भेदभाव, यानी कि छुआछूत उच्च नीच के जो भेदभाव है वह नहीं मिट जाते, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। कि ज्यां सुधी आपणे छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, ये जो ऐशो आराम, विलास प्रियता, भोग विलास, ये सब छोड़कर एक जन सेवकना स्वरूपनी अंदर આપણે એક સાચા જન સેવક જ્યાં સુધી ન બની શકીએ ત્યાં સુધી સ્વરાજ્ય ક્યારે પ્રાપ્ત થઈ શકે ન, એવું બાબા ગંગાદાસે કહ્યું હતું। तो आप तो उसके साथ साथ वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से, यानी कि स्वराज्य जो मिलना है तो वह केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है, उनके सिवा स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता, ऐसा बाबा गंगादास ने कहा। और फिर जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने तो यह भी कहा था, जूही कहते महारानी एमणे तो एवं पण કહ્યું હતું કે स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, यानी कि बाबा गंगादास ने तो यह भी कहा था कि भी स्वराज्य प्राप्त करने से अलावा उनके लिए जो स्वतंत्रता है उनके लिए भूमि तैयार करना, नींव डालना, यानी कि आधार बनाना, भूमि तैयार करना, वह भी उन्होंने कहा था। क्या? भूमि तैयार करना, यानी कि आधार बनाना। यहाँ पर भूमि तैयार करना, तो आधार बनाना अथवा तो नींव डालना, એવું પણ કહી શકીએ, नींव डालना। बाबा गंगादास ने यह भी कहा था कि स्वराज्य के लिए न केवल त्याग समर्पण, उसके लिए केवल उसकी जो भूमि तैयार की जाए, यानी कि उसका जो नींव डाली जाए, वह भी उसके लिए प्रमुख है, यानी कि महत्वपूर्ण। और फिर स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, कि स्वराज्य की जे शुरुआत है एना पायानो पहलो पत्थर बनना, यानी पायो नाखो, उसकी नींव डालना, वह भी बाबा गंगादास ने कहा था। सफलता और असफलता देव के हाथ में, यहाँ पर देव का मतलब दोस्तों नसीब, यानी कि सफलता મળે કે असफलता મળે એ તો નસીબની વાત છે, પણ આ વસ્તુ પહેલા માણસે જીવનની અંદર સંઘર્ષ કરીને અવશ્ય કરવું જોઈએ। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? छતાં પણ પાયાનો પથ્થર બનવા માટે આપણને કોણ રોકી શકે છે? આપણે એના માટે એ પ્રયાસ કરી શકીએ છીએ, અથવા તો આગળ વધી શકીએ છીએ, वह हमारा अधिकार है, અને સાથે સાથે તે આપણો अधिकार પણ છે। लक्ष्मीबाई मुस्कुरा कर कहती है, शाबाश मेरी कर्नल। इसी प्रकार लक्ष्मीबाई को एक उत्साह बढ़ता है और वह मुस्कुरा कर जूहियों को कहता है कि शाबाश मेरे कर्नल, तुम लोगों के से मुझे यही आशा है कि तुम्हारा थी मने यही आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, એટલે કે જે સ્વતંત્રતાનો પાયો તારા જેવી મહિલાઓ બનવા જઈ રહી છે, वह निश्चय महान होगा, અને તે ખરેખર महान હશે, ये श्रेष्ठ હશે। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल। अर्थात लक्ष्मीबाई એવું કહે છે કે મને એ બાબતની ચિંતા છે કે કદાચ એ મારા સમયગાળાની અંદર એ કદાચ
સ્વતંત્રતાનો પાયો નખાય કે ન નખાય એની મને ચિંતા નથી, પણ મને એ બાબતનું દુઃખ છે કે हमारी पास है, यानी कि अपनी पास है श्रेष्ठ शक्ति से, हमारे पास श्रेष्ठ सेना है, यानी कि हमारे पास सभी प्रकार की शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति, यानी कि कहते कि हमारे पास तात्या जैसा महान योद्धा जो सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। तो अनुशासन का मतलब होगा यहाँ पर ये जो नीति नियम, अनुशासन नहीं है। अनुशासन यहाँ पे तो शिस्त पर कह सकते हैं कि हमारे पास ये शिस्त या तो नीति नियम, कि हमारे पास श्रेष्ठ प्रकार की सेना है, तात्या जैसे महान सेनापति है, फिर भी उनकी सेना में अनुशासन नहीं है, नीति नियम नहीं है, जिसमें शिस्त नहीं है। और हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहती है? हमारे पास ग्वालियर जैसा एक मजबूत दृढ़ किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? शा माटे जाने से तो जोई कहती है, जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं, यानी कि मैं जानती हूँ कि हम सभी आज विलासिता में, विलासिता यानी कि सुख साहिबी, भोग विलास, यानी कि हम आज विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां से प्रवेश करती, तभी वहां से मुस्कुराती हुई हस्ती हस्ती ये मुंदर नामनी जे बीजी जे लक्ष्मीबाई की जे सहेली से ત્યાં एंटर થાય છે तो प्रवेश करे છે। और मुंदर कहते हैं, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? कि वो कौन कहे છે કે અમે સુખ સાહિબીમાં ભોગ વિલાસની અંદર આપણે ડૂબી ગયા છીએ। વિલાસિતા में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। कि भाई वो कौन कैसे कि भाई ये विलासिता में अंदर तो राव साहब है, बांदा के नवाब है, जो तात्या जैसे सेनापति है, वह सभी लोग, ये जो सभी योद्धा है, वह सब विलासिता में डूब गए। जो ही जानती हूँ महारानी क्या कहती है? सहसा नहीं मुंदर सेनापति नहीं। एवं अचानक जो ही कैसे नहीं मुंदर सेनापति तात्या नहीं। तो मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उसका पक्ष लोगी। ठीक से हम समझी गए, तू तो एनो पक्ष लईश, पक्ष लोगी यानी कि तू तो एनी तरफदारी करीश। कारण जूही दृढ़ स्वर में कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य यानी कि सच, कि मैं एनो पक्ष नहीं लेती, परंतु जे तथ्य से, जे सच से, उसको छिपाया नहीं जा सकता। जे साचू से એને ક્યારે છુપાવી શકાય नहीं। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते, यानी कि सरदार जो तात्या वह राव साहब को अपने तन मन का, अपने शरीर का, अपने मन का उसे स्वामी मानता है, उसका वह अनुशासन करता है। तेरे मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, और तुम तात्या को अपना स्वामी मानती हो। तो जोही कहती, हाँ मैं उसको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, यानी कि मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, ताकि जोही है जो तात्या की प्रेयसी है, उसकी प्रेमिका, इसलिए कि मैं उसे अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी। लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। छતાં પણ એનાથી વધારે હું महारानी लक्ष्मीबाई ने હું મારા પોતાના स्वामी मानूं છું। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती, यानी कि महारानी करता पण વધારે જો કોઈને હું મારા સ્વામી માનતી હું, તો હું એનાથી વધારે મારા રાષ્ટ્રને, મારા દેશને હું એના મારા સ્વામી માનું છું। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा सकती हूँ, और देश के लिए मैं सरदार को ठुकरा सकती हूँ। ठुकराना यानी कि धिक्कारना, तिरस्कृत करना, कि उनको मैं देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, धिक्कार सकती हूँ, और मैंने तिरस्कृत किया है, उन्हें धिक्कारा भी है। तो मुंदर
शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, कहती तू तो नाराज थी। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने तात्या को अपना स्वामी मान ही लिया है तो तुम उन्हें ये जो रास्ता भटक गया है, जो विलासिता में डूब गए हैं, वही रास्ते से तुम उन्हें रोकती क्यों नहीं हो? मैं तो तुम्हें ऐसा कहना चाहती हूँ, तुम्हें इसमें नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्मीबाई कहती है जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, यानी कि जूही एमणे रोकવાનો प्रयास કર્યો છે, એમને રોક્યા છે मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया। दुत्कार यानी कि धिकारना, तिरस्कृत करना। કે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે વચ્ચે પડીને હું જાણું છું કે ભાઈ જુહીએ સેનાપતિને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેને રાવ સાહેબના કહેવા પર તાત્યા જ્યારે જુહીને નૃત્ય કરવા માટે, નાચવા માટે જ્યારે બોલાવવા આવે છે ત્યારે जूहीए एमना स्वामी तात्या ने दुत्कार दिया था, यानी कि उसे धिक्कार दिया था और वह नृत्य करने के लिए, नाचने के लिए वह नहीं गई थी, ऐसा मैं जानती हूँ। तो दोस्तों ये जो यहाँ तक ये पाठ का जो पहला लेक्चर है, जो पहला भाग है, यहाँ पर हम आज रखते हैं। उसके बाद का जो समझ, उसके बाद का जो पाठ का सार भाव हम अगले क्लास में यानी कि दूसरे पाठ में करेंगे। यहाँ तक ये आज ये रखते हैं।